Morning student, welcome back in this class, and this is the class 9 subject social science, and this is the chapter 3rd. Topic name is poverty as a challenge, and this is the chapter 3rd of economics, and the lecture is number 4. And student, firstly we will recall previous lecture, and in previous lecture we have studied about the poverty, and poverty is a situation when a person is unable to get the basic necessity of life, and the poverty line is an imaginary line used by country to measure their poverty condition, and poverty line estimated by NASO, means National Sample Survey Organization, after every 5 years. And in India, Kerala and West Bengal reduced their poverty because Kerala has focused on human resources development, and in West Bengal, land reform measures have helped in reducing poverty. Okay, and in Andhra Pradesh and Tamil Nadu, reduced their poverty due to public distribution of food grains. And global poverty scenario means poverty decline in China and Southeast Asian countries as a result of rapid economic growth and investment in human resources development. So student, some anti-poverty measure taken by the government to remove the poverty. So first is promotion of economic growth, and second is targeted anti-poverty programs. So student, let's start our lecture, and today we will cover some topic. First is anti-poverty program, and this program has been started by the government to remove the poverty from the country, such as Manrega, PMRY means Prime Minister Rozgar Yojana, rural employment generation programs such as. And next, the challenge ahead. Poverty is a big challenge for the country, and in this topic we will discuss about the challenge of the country, such as poverty, unemployment, uneducation, healthcare. Okay, and last we solve some question I have assigned in previous lecture. So student, let's start. Firstly, we will discuss about anti-poverty programs. Anti-poverty programs means this scheme has been started by government to remove the poverty from the country. बहुत सारे स्कीम जो गवर्नमेंट्स ने स्टार्ट की हैं, जिसकी वजह से क्या है, इनका मेन जो पर्पस है वो क्या है, कंट्री में से पॉवर्टी सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म करना। इसीलिए उन्होंने बहुत सारी स्कीम की हैं। फर्स्ट महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको हम मनरेगा भी कहते हैं। सेकेंड है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। थर्ड, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। एंड फिफ्थ, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये सारी जो दीज आर स्कीम्स आर बेनिफिट फॉर रूरल पीपल एंड अनएम्प्लॉयमेंट. Okay, so firstly we will discuss first Mahatma Gandhi National Rural, and scheme name is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, and it is also called Manrega, and this act was passed in September 2005. मनरेगा जो स्कीम है, मोस्टली ये जो क्या है, ये रूरल एरिया में क्या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के एम्प्लॉयमेंट की गारंटी प्रोवाइड करने के लिए क्या है 2005 में ये क्या है स्टार्ट की गई थी. एंड द एक्ट प्रोवाइड्स 100 डेज assured employment every year to every rural household in 200 districts. The main purpose of this scheme to provide 100 days assured means 100 days employment every year to every rural household in 200 district. जो मेन पर्पज़ है इसका कि सबसे पहले ये क्या है 200 इंडिया के 200 डिस्ट्रिक्ट्स में क्या किया गया, ये स्टार्ट किया गया सबसे पहले.
इनका मेन पर्पस है कि जो भी गांव में जो रूरल एरियाज में रहने वाले हैं जो क्या पुअर हैं उनको क्या है साल में 100 दिन का उनको क्या करना, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि उनको गारंटी देना कि उनको क्या है 100 डेज का क्या है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा. And it also aimed at a sustainable development to address the cause of drought, deforestation, soil erosion. इनका मेन पर्पस है एक सस्टेबल यानी कि फ्यूचर डेवलपमेंट करना. इनका मेन पर्पस यही है कि फ्यूचर डेवलपमेंट करना और कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको क्या करना, ख़त्म करना. जैसे ड्रॉट है, डिफॉरेस्टेशन और सोइल इरोजन, इसको क्या करना, कम करना. और इनका मेन पर्पस है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए कि किसी वजह से अगर ड्रॉट की वजह से या डिफॉरेस्टेशन की वजह से कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको क्या करना, इनका मेन पर्पस को बिल्कुल ख़त्म करना और फ्यूचर डेवलपमेंट करना. एंड 1/3 ऑफ द जॉब रिजर्व फॉर वुमेन. और इस वाली स्कीम में 1/3 जो सीट्स हैं वो क्या है वुमेन्स के लिए क्या है रिजर्व रखेगी. एंड द स्कीम प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 220 करोड़ पर्सन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू 4.78 करोड़ हाउस होल्ड. इसमें इस स्कीम के अंदर क्या है 220 करोड़ लोगों को क्या है इनको क्या है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया, जिसमें क्या है 478 करोड़ लोगों को क्या है इसमें 220 करोड़ तक की स्कीम का क्या है पैसा, इनको क्या है डेली क्या है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया ताकि क्या है सभी लोगों को यानी जो गांव में रहने वाले जो गरीब लोग उनको आसानी से क्या है रोजगार किया जा सके. इस स्कीम के अंदर 4.78 करोड़ परिवारों को क्या है 220 करोड़ का क्या उनको रोजगार दिया गया, यानी को 220 करोड़ रुपये इन पर स्पेंड किया गया. कितने 4.78 करोड़ फैमिली को क्या है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए. इनका मेन स्कीम है रूरल को क्या है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना. इसमें मेन है कि 1/3 से वीमेंस के लिए क्या है रिजर्व की गई. And the shares of SC/ST women percentage in स्कीम आर 23%. यानी इस वाली जो स्कीम है मनरेगा में 23% है शेड्यूल कास्ट के रिजर्व की गई, 17% शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एंड 53% सीट रिजर्व की गई वीमेंस के लिए. ये स्कीम में क्या है रिजर्वेशन रखी ताकि महिलाओं को भी क्या है इनको काम दिया जाए और उनको भी क्या है 100 डेज का क्या है उनको भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सके. लेटर द स्कीम विल बी एक्सटेंडेड टू 600 डिस्ट्रिक्ट. और सबसे पहले ये 200 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया था लेकिन बाद में इस स्कीम को क्या है 600 डिस्ट्रिक्ट में भी क्या कर दिया एक्सटेंड कर दिया गया. If government failed to provide employment, the salary for 100 days would be given. 100 days would be given. अगर मनरेगा स्कीम में अगर कोई भी पर्सन अगर अप्लाई करता है और अप्लाई करने के 15 डेज में अभी उसको क्या है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता तो गवर्नमेंट के द्वारा उसको क्या है सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, चाहे उसे को काम करे या ना करे. तो 100 डेज के लिए उसको क्या है सैलरी प्रोवाइड की जाएगी. तो एम्प्लॉयमेंट ये गवर्नमेंट का मेन पर्पस है कि जो भी रूरल पर्सन है उसको क्या है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए. अगर वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करवा पाते तो वो क्या करते हैं उनको 100 डेज की सैलरी भी प्रोवाइड करते हैं. तो दिस स्कीम वॉज स्टार्टेड इन 2005. इट्स मेन एम टू प्रोवाइड 100 डेज assured employment to every rural household and 1/3 seats are reserved for women. And in this category some seats reserved for scheduled castes, lump sum 23%, 17% reserved for ST card and 53% reserved for women's. Later this scheme will be extended 600 district. तो इसका मेन पर्पस है जो गांव में लोगों को क्या है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना और वहां से जो है उनकी पॉवर्टी को क्या करना रिड्यूस करना. सेकेंड प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना. सेकेंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड PMRY, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना. एंड इट वॉज स्टार्टेड इन 1993. Its main aim to create self-employment opportunity for educated unemployed youth in rural areas and small towns. And they are helped in setting business and industries. Main aim of PMRY
to provide self-employment opportunity for educated youth in rural areas and small town, and they provide a loan and they are help in setting business and industries. इस स्कीम के अकॉर्डिंग 1993 में अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई, उसका नाम है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। इस स्कीम के अनुसार जो भी यूथ है, यानी जो भी बच्चा पढ़ा लिखा है, जो भी क्या है, जिसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली लेकिन वो अनएम्प्लॉयड है, तो उसको क्या है, चाहे वो रूरल एरिया है या स्मॉल टाउन से बिलोंग करता है, उसको क्या करना, उसको हेल्प करना, उसको लोन प्रोवाइड करना है, उसको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करनी, ताकि वो क्या है, कोई भी अपना सेल्फ बिजनेस स्टार्ट कर सके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर सके, छोटी छोटी इंडस्ट्री लगा सके, बिजनेस स्टार्ट कर सके, ताकि वो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने का मेन पर्पज़ है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। और इसके लिए क्या है, इस स्कीम के अकॉर्डिंग क्या है, गवर्नमेंट क्या है, लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ताकि लोग क्या है, इसमें अपना खुद का कोई ना कोई बिजनेस सेट कर सके। ओके, तो दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड REGP. It was launched in 1995. प्राइम मिनिस्टर वाली हुई 1993 में, एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इट वाज लॉन्च्ड इन 1995, and the main aim of the program is to create self-employment opportunity in rural area and small town. It also focus on self-employment opportunity in rural area and small town, and a target for creating 25 lakh job has been set for program under the 10th 5-year plan. अकॉर्डिंग टू द रूरल एम्प्लॉयमेंट, ये एक नई स्कीम बनाएगी 1995 में। इसका भी मेन पर्पज़ यही था, टू इम्प्रूव सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एंड स्मॉल टाउन। उसका भी मेन पर्पज़ यही है कि जो भी पर्सन है जिसके अंदर स्किल्स और एबिलिटी है, उनको अंदर अगर उनको जॉब नहीं मिलती तो उनको क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको क्या है ना, मोटिवेट करना। और ये जो सारी स्कीम है ये रूरल और स्मॉल टाउन्स में क्या की गई, इम्प्लीमेंट की गई, ताकि जो वहाँ के जो है यूथ है उनको क्या है, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद या कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो अपना कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। सबसे पहले जो इसमें टारगेट सेट किया गया, जो 10th 5-year प्लान था, यानी कोई भी गवर्नमेंट है जो वो कोई भी गवर्नमेंट जब बनती है तो वो अपने लिए क्या बनाती है, एक 5-year प्लान बनाती है, ताकि क्या उस 5-year प्लान के अंदर उसमें क्या है, कुछ ना कुछ चेंज किया जा सके, और क्या है उसमें अंदर वो अपने उसमें जो भी उनका एम है उसको फुलफिल किया जाए। तो उनका जो जब 10th ईयर प्लान था तो उस समय उन्होंने क्या किया था, इस वाले प्लान के अंदर कि इस वाले प्लान प्रोग्राम के अंदर कि रूरल एरियाज या स्मॉल टाउन में कम से कम 25 लाख लोगों को क्या है जॉब प्रोवाइड करने के लिए क्या है स्कीम बनाई गई थी, ताकि रूरल और स्मॉल टाउन्स में पॉवर्टी को बिल्कुल रिमूव कर दिया जाए। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती, एंड इट was also launched in 1995, and its main aim at bringing the assisted poor family above the poverty line. Swarn Jayanti Gram Swarojgar Yojana started in 1995, and its main aim to bringing the poor family above the poverty line. इनका मेन पर्पस है कि जो गरीब फैमिली उनको पॉवर्टी लाइन से अबव करना है, यानी जिसकी इनकम 816 पर मंथ से पर पर्सन से क्या है काफ़ी कम है, तो उनको पॉवर्टी लाइन से अबव करना। बाय ऑर्गेनाइजिंग देम, उनको क्या है ऑर्गेनाइज करना, उनको एक समूह बनाना, ऑर्गेनाइजेशन बनाना। देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनको क्या करना है ऑर्गेनाइज करके उनके क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना, जो अपना कुछ ना कुछ बिजनेस करके सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाता है, जिसमें सभी लोग अपना एक ही कैटेगरी के लोग मिलके अपना एक ग्रुप बनाते हैं, उसको कहा जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। थ्रू ए मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी, उनको
ग्रुप बनाया जाता है, उनको क्या है बैंक से इनको क्या है क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है और गवर्नमेंट उनको सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो इसलिए इनका मेन पर्पस है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार कि गरीब लोगों को यानी जो पुअर फैमिलीज हैं उनको पॉवर्टी लाइन से अबव करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनके ग्रुप बनाना। उस ग्रुप का नाम रखा गया सेल्फ हेल्प ग्रुप नाम रखा गया। और उनका मेन पर्पस है इनका मेन पर्पस है कि उनको आसानी से ग्रुप बनेगा तो उनको आसानी से बैंक से लोन आसानी से प्रोवाइड किया जाएगा और उनको गवर्नमेंट से भी क्या प्रोवाइड की जाएगी सब्सिडी, यानी गवर्नमेंट से भी बहुत ही सस्ते रेटों में उनको क्या है उनको गुड्स प्रोवाइड किए जाएंगी। तो मेन पर्पस ऑफ दिस स्कीम to improve the condition of poor family. Okay, तो it was also launched in 1995. तो मेन इन सभी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का मेन जो पर्पस है, सभी जो रूलर्स एरिया में रहने वाले हैं, स्मॉल टाउन में रहने वाले हैं, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का मेन पर्पस यही है ताकि पॉवर्टी को क्या किया जाए, बिल्कुल रिमूव कर दिया जाए। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2000। जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है ये स्टार्ट की गई 2000 में। एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंट इज गिवन टू स्टेट फॉर बेसिक सर्विसेज सच एज प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना इसका भी मेन पर्पस यही है कि जो गांव में रहने वाले हैं इसके अंदर भी क्या है सभी लोगों को क्या प्रोवाइड किया जाए, उनको प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ, रूरल शेल्टर, प्रॉपर रूरल ड्रिंकिंग वाटर, यानी उनको भी बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने का मेन पर्पस किया गया। और इसके अलावा इनको क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी क्या है हेल्प प्रोवाइड की जाती है। एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंट इज गिवन टू स्टेट। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करती है उस स्टेट में फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ है यानी हॉस्पिटल वहाँ पे ओपन करवाने के लिए, या एलिमेंट्री एजुकेशन टू ओपन एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड फ्री एंड फेयर एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एज ऑफ 6 to 14 ईयर and provide midday meal also and rural shelter and provide drinking water and other facility to improve the condition of rural people। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय इनका भी मेन पर्पस है कि गांव में रहने वाले लोगों की भी कंडीशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना, इसीलिए स्कीम बनाएगी 2000 में। इसीलिए क्या है इसको ग्रामोदय यानी मेन फोकस है ये ग्रामोदय, यानी कि रूरल एरियाज़ को क्या करना, एनहांस करना, उसको इम्प्रूव करना। इसलिए इम्प्रूव करने इनको बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती हैं ताकि जो को है लाइफ की बेसिक नेसेसिटी फुलफिल की जा सके। नेक्स्ट, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इसमें ये स्कीम है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। अकॉर्डिंग टू दिस इसमें क्या है कि अगर आपको क्या है अगर आप काम करते हो यानी आप अगर वर्क फूड फॉर वर्क यानी आप काम के बदले आपको क्या मिलेगा, फूड मिलेगा। एंड इट वॉज लॉन्च इन 2004। इसको भी 2004 में स्टार्ट किया गया और ये 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री पूरे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे इनको स्टार्ट किया गया ताकि जो लोग अनस्किल्ड हैं या बहुत ज़्यादा क्या है गरीब लोग हैं उनको क्या है मोटिवेट करने के लिए उनको क्या है काम के बदले उनको क्या है खाना दिया जाता है। And the program is open to all rural people who are in need of wage employment and are desire to manual unskilled work. It is implemented as a 100% centrally sponsored scheme and food grains are provided free of cost of the state. इस वाली स्कीम का भी ये क्या है रूरल पीपल, ये भी गांव वाले लोगों के लिए क्या ओपन किया गया जो बहुत ज़्यादा क्या है पॉवर्टी लाइन से बिलो लाइफ सर्वाइव करते हैं। और इनका मेन पर्पस भी है लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना कि जो भी है अनस्किल्ड वर्क है यानी कि कोई भी फिजिकल वर्क है जिसमें क्या है हाथ से काम करने वाला जो कोई भी काम है तो उनको क्या है उनसे काम करवाया जाए ताकि उनको काम दिया जाए। और यही जो है इसमें भी क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है स्पॉन्सर करती है। और इसमें भी जो फूड ग्रेन्स दिया जाता है यानी काम के बदले जो भी उनको खाना दिया जाता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, यानी आप जितना काम करोगे आपको उतना ही क्या मिलेगा फूड मिलेगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो क्या है पॉवर्टी को
रिमूव करने के लिए हैं। और ये जो सारी स्कीम है ये मोटिवेट करती हैं रूरल्स पीपल्स को और स्मॉल टाउन्स में रहने वाले लोगों को, ताकि वो क्या है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनको लिए इम्प्लीमेंट की जाती हैं, ताकि वो क्या है अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करके और क्या कर सके, पॉवर्टी को रिमूव कर सके। तो दीज आर द स्कीम्स ऑफ एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। फर्स्ट इज मनरेगा and it was launched in 2005 and provide 100 days of wages of assured employed. And Prime Minister Rozgar Yojana, it was started in 1993 and its main aim to create self-employment opportunity for educated unemployed youth in rural areas. And the Rural Employment Generation Program, it was launched in 1995 and its main aim to provide employment in small town and rural areas. And Swan Jayanti Gram Swarojgar Yojana, its main aim to provide to enhance poor families above the poverty line. And the Pradhan Mantri Gram Udyay Yojana provide basic necessity of life such as good water, primary health, primary education, rural shelter, rural drinking water such as. And National Food for Work program, it was started in 2004 and its main purpose to provide food. Grains are provided free of cost of the state. Okay. The challenge ahead. The challenge ahead means future challenges कि हमारी कंट्रीज में जो आने वाले जो टाइम है उसमें कौन कौन से चैलेंज हैं। इंडियाज मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज रिमेन्स द पॉवर्टी रिडक्शन। हमने बहुत ज़्यादा पॉवर्टी क्या है रिड्यूस कर दी है कि अब जो हमारे यहाँ है 22% जो पॉवर्टी है, लेकिन उसको बहुत सारी पॉवर्टी हमने इतने सालों से क्या है पॉवर्टी बहुत रिड्यूस की है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आप अभी भी जो हमारे सामने क्या है सबसे बड़ी जो डेंजरस एक चैलेंजेज है वो है पॉवर्टी को रिड्यूस करना। वाइड डिस्पैरिटीज इन पॉवर्टी आर विजिबल बिटवीन, बहुत सारे तरह की वाइड डिस्पैरिटी यानी कि अलग अलग हम पॉवर्टी देखते हैं। रूरल्स में अलग है, अर्बन्स एरियाज़ में अलग है, काफ़ी अलग अलग स्टेट्स में भी पाई जाती है। जैसा आपको पता है बिहार और उड़ीसा में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, ओके, एंड केरला में पॉवर्टी की रेशो काफ़ी कम है। तो वाइड डिस्पैरिटी इन पॉवर्टी आर विजिबल बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया एंड अमंग डिफरेंट स्टेट्स एंड सर्टन सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स आर मोर वेनरेबल टू पॉवर्टी। बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हैं सच एज शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं। इकोनॉमिक ग्रुप्स में जैसे आपके लेबर हैं, डेली वेजेस वर्कर, रूरल एरिया एंड अर्बन एरियाज, वो वनरेबल हैं जिनको क्या है अभी भी क्या है उनको क्या है इनको इक्वलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती, उनकी जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा पुअर है। तो ये अभी भी हमारे लिए फ्यूचर के क्या है ये चैलेंजेस हैं जो हमें क्या है इनको रिड्यूस करना है मेन। एंड द पॉवर्टी रिडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी मेक बेटर प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर। ये पॉवर्टी रिडक्शन हो सकती है कि जब बेटर प्रोग्रेस होगा यानी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो आने वाले 10 या 15 सालों में जो पॉवर्टी है वो क्या है मे बी रिड्यूस की जा सकती है। एंड पॉवर्टी प्रोवाइडिंग कैसे रिड्यूस की जाएगी, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड जॉब सिक्योरिटी फॉर ऑल एंड अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एंड डिग्निटी फॉर द पुअर आर द बिगर चैलेंज बिफोर इंडिया। इसके पहले है कि ह्यूमन पॉवर्टी मीन्स रेफर टू द लैक ऑफ एसेंशियल ह्यूमन नेसेसिटीज सच एज लिटरेसी, हेल्थ केयर एंड ए बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पॉवर्टी तो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, लेकिन ह्यूमन पॉवर्टी क्या है, ह्यूमंस को भी क्या चाहिए, उनको हेल्थ केयर है, लिटरेसी लेवल है। तो इसके लिए क्या ह्यूमन पॉवर्टी को तभी रिमूव किया जा सकता है जब प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड जॉब सिक्योरिटी ऑल एंड achieving gender equality and dignity, provide respect for the poor all are the bigger challenge for India। कि पॉवर्टी का रिड्यूस करने के अलावा भी हमें क्या हमारे जो बिगर जो चैलेंज है कंट्री के सामने वो है सभी लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, डिग्निटी प्रोवाइड करना। ये हमारे इंडिया में सबसे बड़ा चैलेंज है और ये तभी होगा जब हमारी क्या होगी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और हम सभी को क्या कर पाएंगे, सभी को एजुकेशन हेल्थ केयर प्रोवाइड कर पाएंगे। तो आने वाले 10-15 सालों में हम पॉवर्टी को क्या कर पाएंगे, रिड्यूस हो सकती है।
This would be possible mainly due to higher economic growth, increasing stress on universal free elementary education. Means poverty reduce would be possible when main focus on high economic growth and increasing यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन। मीन्स ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारी इकोनॉमी क्या है, ग्रोथ करे, प्रोडक्शन ज़्यादा हो, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड ज़्यादा हो, पॉपुलेशन कम हो और हमारी इकोनॉमी क्या हो, काफ़ी इम्प्रूव हो। और क्या है, सभी लोगों को, सभी जो छोटे बच्चे उनको क्या है 6-14 उनको क्या है एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री प्रोवाइड किया, तभी ये पॉसिबल है। इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन एंड इकोनॉमी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। एम्पावरमेंट यानी कि वीमेंस को भी क्या है, उनको भी कंडीशन को इम्प्रूव करने, उनको भी क्या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जा सके। इकोनॉमिकल वीकर हैं, जैसे डेली बेसिस वर्कर हैं और आपके डेली बेसिस हैं, वेंडर्स हैं, जो भी इनका है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, इनको भी क्या है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जा सके, तभी हमारी कंट्री में क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और पॉवर्टी को क्या है रेड्यूस किया जाएगा। तो ये हमारी कंट्री के सामने बहुत बिगर चैलेंज है, जिसमें हमें क्या है एजुकेशन के अकॉर्डिंग और पॉवर्टी को हम क्या कर सकते, रेड्यूस कर सकते हैं। पॉपुलेशन को कंट्रोल करके, एजुकेशन प्रोवाइड करके, बेसिक हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करके हम अपनी कंट्री से पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं। इन इफेक्टिवनेस ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं, बहुत सारे स्टेप हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन उनमें भी क्या है इनइफेक्टिव नहीं, यानी कि उनका भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस नहीं हुआ। क्योंकि फर्स्ट है लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड राइट टारगेटिंग। उनको क्या है इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि उनको प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया। लैक ऑफ प्रॉपर यानी कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी लेकिन उसको फॉलो प्रॉपरली नहीं किया गया, राइट टारगेट उसका सेट नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम उसका बेनिफिट क्या रिच पुअर लोगों को ना होके बल्कि दूसरे मेंबर इसको क्या करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। देयर हैज़ बीन ए लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम। काफ़ी सारे स्कीम है जिसमें कई स्कीम्स का क्या है, कई स्कीम का लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं पाती, ओवरलैपिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है जो मेन इंफॉर्मेशन है वो क्या है गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। एंड द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम डू नॉट रिच द डिजर्विंग पुअर। और जो पुअर्टी एलिवेशन का मेन फोकस है पुअर पर्सन, लेकिन क्या है वो पुअर पर्सन अनएजुकेटेड होते हैं और वो सभी स्कीम को क्या है फॉलो नहीं कर पाते, उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते, जिसकी वजह से जो रिच पर्सन है या एजुकेटेड पर्सन है वो स्कीम को क्या है यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो गरीब जो लोग हैं वो क्या है उनका यूज़ नहीं कर पाते। जैसे कि BPLs हैं, राशन कार्ड्स हैं, जिस स्कीम का क्या करते हैं गवर्नमेंट गरीब लोगों के लिए प्रोवाइड करता है, लेकिन जो मेन है जो बेनिफिट है वो गरीब लोगों को ना हो के बल्कि कहीं और ही पर्सन क्या करता है उसका मिसयूज़ करता है। तो सो दिस आर द इनइफेक्टिवनेस ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। तो बहुत सारी स्कीम है, इनका मेन पर्पज़ है पॉवर्टी को क्या करना, रिमूव करना। लेकिन हम रिमूव तभी कर पाते हैं जब इसको क्या है, जब स्कीम को प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, स्कीम को प्रॉपर सभी लोगों तक उनको क्या है पहुंचाया जाए, तभी क्या है जो डिजर्विंग पुअर है उनको फैसिलिटी क्या उनको प्रोवाइड की जा सके। ओके स्टूडेंट, एंड टुडे योर होमवर्क सॉल्यूशन। फर्स्ट, describe how the poverty line is estimated in India. And you know the poverty line is estimated based on consumption or income level in India. First, consumption method is also called expenditure method. A person has basic needs which include minimum level of food, clothing, education and medical needs. The total minimum food requirement is firstly converted in calories, which is then converted into money value in rupees. And C, in India, the daily minimum calorie requirement for a person has been fixed at 2400 calorie in rural areas and 2100 calorie in urban areas. This is the consumption method. And next is income method. Under this method, a minimum per capita income is fixed, and the income was fixed at 816 and ₹1,000 per capita per month in rural and urban areas. If any family has an income less than the fixed income, it is considered as below the poverty line. This method is used to distributed food. इस मेथड का यूज़ हम फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए करते हैं कि
How are China and Southeast Asian countries able to control poverty? Answer is poverty declined substantially in China and Southeast Asian countries as a result of rapid economic growth and investment in human resources development. How did unemployment leads to poverty? Unable to find proper job in cities, many people started working as rickshaw puller, vendors, construction worker and domestic worker with irregular small income. These people could not afford proper housing and starting living in slum area of the cities. Identify the social and economic groups which are most vulnerable to poverty in household and urban India. First is social group. It includes scheduled caste and scheduled tribes household, and economic groups includes rural agriculture labor and the urban casual labor households. Question: how is the economic growth linked with poverty reduction in India? Economic growth widens opportunity and provides the resources needed to invest in human development, and this also encourages people to send their children, including the girl child, to school in the hope of getting better economic return from investing in education. Which state has the lowest percentage of poor in India? Answer is Kerala. Discuss the major reason for poverty in India. Answer is low level of economic development under the British rule in India. Second, decline of India handicraft industry which led to unemployment, poverty, etc., which were responsible for the low rate of economic growth. Third, social factor like caste system, religious faith and belief also kept certain section under poverty. Growth of population at a very high rate lead to a very low rate of per capita income. And fifth, huge income inequalities due to unequal distribution of land and other resources. And student, today your homework: do following question. First, do you think that present methodology of poverty estimation is appropriate? Question number 6, describe poverty trends in India since 1973. And question number 3, what are the main features of the National Rural Employment Guarantee Act 2005? And question number 5, describe current government strategy of poverty alleviation. Question number 5, what do you mean by human poverty? Question number 6, what is the full form of SGSY? Question number 7, what was PMGY? And the question number 8, the results of poverty alleviation program have been mixed. Give some reason. And question number 9, state the growth rate of India in the decade of 1980. Okay student, and all question done in your fair notebook and send in WhatsApp and also Gmail, and mention proper name, roll number and section. Thank you.